وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ کامیابی پاکستان کے مستقبل کی خاطر حاصل کریں گے، تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اور میں چیف منسٹر صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے آ کر ہمارے کارکنوں کی باتیں بڑے صبر و تحمل اور غور سے سنی، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ گیل ہو کے آپس میں کٹھے انشاءاللہ فیوچر میں کٹھے چلیں گے اور پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں ریکویسٹ کروں گا سی ایم صاحب سے کہ وہ بھی آپ سے مخاطب ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، میں مخدوم احمد محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج انہوں نے مجھے مدعو کیا، اور پیپلز پارٹی کے ہمارے ساؤتھ کے جو بھائی ہیں ان سے آج تفصیلی گفتگو بھی ہوئی، اور میں آج پنجاب کی عوام کو بالخصوص اور پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ اتحاد نہ تو کوئی حکومت بنانے کا اتحاد ہے، نہ یہ اتحاد اپنی سیاست کی بقا کا اتحاد ہے۔ یہ ملک و قوم کے لیے اتنی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ہمارے ساتھی ہیں، میڈیا جو ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہوا کرتا ہے، آپ سے تو آپ کے کیمرے سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آج 4 سال جس صوبے میں کوڑے کے ڈھیر چوراہوں پر گلیوں میں ملتے تھے، عید الاضحیٰ کے موقع پر ایسا کیا ہوا کہ جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں سوشل میڈیا پر بھی، اور عام آدمی جو ہے وہ کہنے پہ مجبور ہے الحمدللہ کہ لاہور اور تمام جو 36 اضلاع ہیں وہاں پر صفائی عید الاضحیٰ کے اوپر مثالی تھی۔ آج میں نے اپنے کمشنرز کو بٹھایا ہوا تھا، اور میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ہی کام کہتا ہوں کہ آپ کام کریں، میرٹ کو پروموٹ کریں، اور کمپیٹنٹ لوگ ہوں۔ مجھے کسی کی شکل سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس ملک کو، اس صوبے کو ہم نے سنوارنا ہے۔ میرے پاس تو کابینہ نہیں تھی، میں نے تو عمران نیازی صاحب کی طرح نہیں کہا کہ میڈیا کو کہ آپ 3 مہینے مجھ سے پوچھیں ہی نا، 3 مہینے بعد مجھ سے پوچھیے گا۔ جب 3 مہینے گزرے تو انہوں نے کہا جی ابھی 6 مہینے اور دے دیں، اور سال بعد مسعود نے کہا مجھے تو اب سمجھ آئی کہ پاکستان کو چلانا کیسے ہے۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میرے پاس تو اپنا جو ہے، جو میں نے اسمبلی سے ووٹ لے لیا، چیف منسٹر الیکٹ بن گیا، اس کے بعد گورنر آ رہا تھا جا رہا تھا، صدر اس پہ اسمبلی کو مسترد کر رہا تھا، کابینہ 2 مہینے کابینہ کے بغیر میں نے گزارا کیا۔ اللہ کا شکر ہے میری کوئی اوقات نہیں ہے، مجھے تو کسی نے روکا کہ میں نے پاکستانی عوام کو، صوبے کی عوام کو 200 ارب کی سبسڈی دے کر 160 روپے سستا کیا 10 کلو کا آٹا جو ہے تھیلے کا۔ اس کے بعد 100 یونٹ، آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا ریلیف نہیں ملا۔ پاکستان اور پنجاب کے صوبے کی عوام جو 5.5 کروڑ عوام کو 100 یونٹ جو استعمال کرتے ہیں مفت بجلی دینی تھی، یہ موصوف کچھ اور تو کر نہ سکے 4 سالوں میں۔ الیکشن کمیشن میں چلے گئے کہ مجھے اسٹے آرڈر دیں، صوبے کی عوام کو جو مفت بجلی کا جو منصوبہ ہے اس کے اوپر اسٹے لے لیا الیکشن کمیشن سے۔ گزارش یہ ہے کہ آج جو شخص 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کر کے آیا تھا، لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر کے چلا گیا، 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا، بنی گالا کے غیر قانونی تجاوزات، ناجائز تجاوزات کو اس کو ریگولائز کرا دیا چند لاکھ دے کے، غریب کا جھونپڑا گرا دیا کہ بھئی یہ ناجائز تجاوزات ہے۔ آج وہ پھر ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ بھئی ریاست مدینہ میں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کرتے کا حساب مانگا جاتا تھا، آپ سے توشہ خانے کی جو گھڑیاں آپ نے بغیر ڈکلیئر کیے ہوئے کروڑوں میں آپ نے بیچ دی، جو دوست ملکوں نے دی تھی، پاکستان کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا، اور ابھی فورن فنڈنگ کا کیس جو ہے اس کا فیصلہ آنا ہے، پتہ لگ جائے کہ منی لانڈرنگ کس نے کی ہے۔ تو میں آج الزام تراشی میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بات ہے پاکستان کی۔ اس پاکستان کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، اور میں آپ کو ذمہ داری سے
एक सियासी कारकुन के नाते बताना चाहता हूं कि लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, 74 साल बाद पाकिस्तान आज हमसे कुर्बानी मांग रहा है। और आज जिसने इस अमानत में ख़यानत की, जिसने सियासत को अपना मुतमईन नज़र बनाया, वो पाकिस्तानियत के तकाज़े अदा नहीं करेगा और हम अल्लाह ताला को भी जवाब देंगे। और मेरी बतौर वज़ीर आला पंजाब अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझसे इस सूबे की खिदमत का काम ले। ये शक्लें ना हमजा शहबाज की याद रहेगी, ना किसी और की याद रहती हैं। ये ओहदे लोगों को भूल जाते हैं। अच्छे काम इस दुनिया और आखिरत में काम आते हैं। यही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मुझे कहना है। यही हमारी इत्तेहादी जमातों में इत्तफाक हुआ है और अल्लाह ताला ने चाहा तो 17 जुलाई को ये जो हमारा इत्तेहाद है, इंशाअल्लाह ताला आवाम में इसको पजीराई हासिल होगी और हम इंशाअल्लाह ताला इन 20 सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। और कामयाबी हासिल कर कर हमने इमरान नियाजी की तरह इंतकाम की सियासत नहीं करनी। हमने अपने सियासी जो हरीफ हैं उनको गालियाँ नहीं निकालनी, उनको चोर डाकू नहीं कहना। हमने पाकिस्तान की मईशत जो आज डूब रही है, जो आज सिसकियाँ ले रही हैं, उसको डगर पर डालना है। हमने इमरान नियाजी की तरह आवाम से खिलवाड़ नहीं करना कि एक तरफ IMF के घुटने पकड़कर आप तेल महंगा करने के वादे वईद कर रहे थे और दूसरी तरफ आप लोगों को कह रहे थे कि मैंने तेल सस्ता कर दिया। हमने वो काम नहीं किया। हमने सियासी अपना जो है फैसले किए जिनकी भारी सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। लेकिन आज अल्लाह वो दिन ले आया है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें सस्ती हुई हैं। इंशाअल्लाह अवाम ने जो कुर्बानी दी है, अब अवाम का ये तकाजा है कि वो कुर्बानी का सिला उनको जो है वो पेट्रोल की कीमतों में जो भी कमी हुई है वो डायरेक्टली अवाम को उन कीमतों का फ़ायदा जो है मुंतकिल हो। तो इंशाअल्लाह ये मुल्क को कौम रहेगी तो ये सियासत भी होती रहेगी, पीपल्स पार्टी भी सियासत करेगी। तो मैं यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब को भी मैं अपना जो है उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो आज हमारे साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात होंगे, वक्त पर होंगे। लेकिन 4 सालों में जो इस मईशत का सत्यानाश हुआ, जो इस सूबे के साथ खिलवाड़ हुआ वसीम अकरम प्लस के नाम पर, इसको हम ठीक कर लें तो इंशाअल्लाह जब मैदान लगेगा इलेक्शन का, जिसकी जीत होगी, जिसको अवाम मैंडेट देगी, वो इस मुल्क की बागडोर संभाले इंशाअल्लाह। मैं इमरान नियाजी साहब की बातों का जवाब उनकी ज़ुबान में तो नहीं दे सकता, ना मैंने कभी दिया है। हमारे कायदीन ने जेलें काटी, 22 महीने मैं जेल में रहा, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। लेकिन नियाजी साहब, जब अना जो है ना वो पाकिस्तान के मुफादात से बड़ी हो जाती है, जब तकब्बुर में आप लोगों को इंसान नहीं समझते, उनकी तज़लील करना जो है वो आपका शेवा बन जाता है, तो फिर अल्लाह ताला की लाठी घूमती है। आप तो 10 साल का प्लान बनाकर बैठे थे, आप वही हैं ना जो आज बग़ैर किसी सबूत के धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। डस्का में जो आपने कुछ किया, लोग तो उधर अपना जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अमीन गंडापुर डब्बे उठा के ले गया, आपने तो पोलिंग एजेंट्स को और अपना जो है वो पोलिंग स्टाफ को उठा के ले गए आप, अवाम ने देखा। तो इंशाअल्लाह मैदान सजेगा, कुछ सबूत है तो लेके आए। 17 को दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिस तरह लॉन्ग मार्च वाले दिन 25 लाख का मजमा लाना था, उसमें से ज़्यादा नहीं तो 24,90,000 लोग कम आए। तो इसमें मेरा कसूर है अगर अवाम ने आपकी कॉल पे कान नहीं धरा। तो अब अवाम में आपका असल चेहरा बेनकाब हो गया है। अगर जहाद इसको कहते हैं कि फरा गोगी और जमील गुज्जर जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को लूट खसूट करें, और आप जब उनका नाम आए तो आपके घर से वादे हैं फरा गोगी तो मेरी बेटी है, सबको गद्दार का सर्टिफिकेट बांध दो। तो ऐसे जहाज से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे।
आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मैं कारकुन हूँ, अयाज सादिक साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और अपना जो है वो सलमान रफ़ीक साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। मेरी पार्टी इजाज़त देती, मैं भी मुस्ताफ़ी होकर ज़मीनी इलेक्शन लड़ा होता, लेकिन मुझे पार्टी ने इजाज़त नहीं दी। तो जहाँ तक सवाल आपका है, हमने जो फैसले किए अवाम जानती है कि पाकिस्तान के मुफाद में किए। महंगाई से अवाम तंग है, लेकिन खुदा के फजल करम से मुस्लिम लीग नून का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। लोग जानते हैं कि इस मुल्क में अंधेरे थे, 22 घंटे की अजियतनाक लोड शेडिंग थी, उसको हमने ज़ीरो किया जब 2018 में था। आज ऐसी क्या वजह हो गई कि 2-4 सालों में लोड शेडिंग अरूज पर है? तो इंशाल्लाह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अवाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर भरोसा करते हैं और इज़्ज़त रब देता है। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो 17 को 20 सीटों पे जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें इंशाल्लाह हम वाज़े अक्सर से कामयाब होंगे। जवेद रुकी साहब, यार ये वही मौसूफ हैं जो 1 पेज की रट लगाए रखते थे और उनकी ज़ुबान थकती नहीं थी। तो ये देखें, मैं आपसे आज एक संजीदा बात कर दूं। जब तक सब ठीक था तो सब अच्छा था। ये ऐसा शख्स है जिसने कहा कि अगर मैं नहीं तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की एटमी को तबाह हो जाएगी, फ़ौज तबाह हो जाएगी, इदारे तबाह हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज ये शख्स जो है सियासत नहीं कर रहा, ये अपनी झूठी सियासत के पीछे इंतशार फैलाना चाहता है। और ये जब कहता है ना कि ये श्रीलंका बन जाएगा, ये इसके अंदर की ख्वाब ज़रूर हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर जो इंतशार फैलाने वाले हैं उनकी सियासत चिकनाचूर होगी, वो नाकाम होंगे। और इंशाल्लाह, मैं बड़ी बात नहीं करता, बड़ी अल्लाह की ज़ात है, मेरी कोई औकात नहीं है। इंशाल्लाह अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मेहनत करेंगे। 17 के बाद अल्लाह कामयाबी देगा। इस मुल्क की खातिर फैसले करेंगे। आवाम को खुशहाल करने में कोई कोशिश जो है उसकी कमी नहीं होगी और इसको हम कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। यानी उल्फत एक मेरा ख्याल है कि हम सब सियासी लोग हैं, अपना जो है ग्रास रूट लेवल से सियासत करके आए हैं। हम सबको ये अदराक है कि ये मुल्क आज दुराहे पे खड़ा है और हमें कोई एक सियासी जमात, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, कोई एक सियासी जमात इस मुल्क की काया नहीं पलट सकती। तमाम जमातें, चाहे वो बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट जमातें हैं, हम सबको मिलकर ये जिम्मेदारी अदा करनी है। इस पाकिस्तान को इस मझधार में से निकालना है। खुदा न खास्ता अगर हम नाकाम हुए तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता नाकाम होगा। तो जो शिकस्त है वो हमारी चॉइस नहीं है, हमने हर सूरत जीतना है और ये हमारी जीत नहीं है, ये अवाम की और पाकिस्तान की जीत होगी इंशाअल्लाह। मुझे आप ये बताएं ना कि एहसन इकबाल साहब जैसे शरीफुल नफ्स इंसान, उन पे फैमिली ने जो है उनके ऊपर अपना जो है ना इल्ज़ामात अपना दोहराए झूठे और फिर उनसे अपना जो है वो बदतमीज़ी की। तो मेरे भाई, अगर पहले ही नफ़रतें बहुत ज़्यादा इस मुल्क में इंतशार है, अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो हमें इत्तफाक की फ़िज़ा पैदा करनी होगी। और बड़ी खुशाइंद है, मैं उस फैमिली को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने एहसन इकबाल साहब से जाके माफ़ी मांगी। तो इत्तफाक से, अखलाकियात के साथ, कलेक्टिव विजडम के साथ इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे, वरना सबका नुकसान हो जाएगा।
इमरान नियाजी साहब का जो है ना सबसे जो अच्छी क्वालिटी जो उनको मैं दाद देता हूँ, जब मैं ऑपोजिशन लीडर तब भी दाद देता था कि जब भी वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएंगे, अपने झूठ का पलंदा लेके जाएंगे, तो उनको बहुत बड़ा जो है ना उसमें रिकग्निशन मिलेगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एज ए झूठा नंबर 1। ये वही शख्स हैं जो अपने इक़्तिदार के दिनों में कहते थे कि ये तो इलेक्शन कमीशन मैंने नहीं, हमने तो मिलकर इनको इनका इंतखाब किया है, तो अब क्यों अपोजिशन एतराज़ कर रही है? तो ये मैं ना मानू वाली अपना बात है। दूध का दूध, वज़ीर पानी आला का पंजाब पानी हमजा होगा। शहबाज लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वसीम अकरम प्लस के नाम पर इस सूबे के साथ खिलवाड़ किया गया। 2 माह काबीना के बगैर गुजारा किया, लेकिन सूबे को 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।